بے در پہ پڑنے والے گھوسوں سے ابان جلد ہی زمین پہ گرا۔ حرم اس کو روکنا چاہتی تھی مگر اس وقت اس آدمی سے اسے شدید خوف محسوس ہو رہا تھا جو جلا کر خاص کار کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ لالا چھوڑ دیں اس نیچ کو۔ شہروز نے اسے روکنا چاہا مگر شامر روکنے کا نام نہیں لے رہا تھا۔ وہ اسے لاتوں اور مکوں اور تھپڑوں سے بری طرح پیٹ رہا تھا۔ تو یہیں رک سالے، یہ تیرے ہاتھ میں تیرے تن سے جدا کر دوں گا۔ وہ منہ سے نکلنے والے خون کو صاف کرتا زبان کو تھوڑی بہت مذمت سے اس کے منہ پر مکے پڑے تھے۔ شامر اس پر سے ہٹا اور اپنے کمرے کی طرف ریوالور لینے گیا۔ لالا ویٹ شہروز کو سنگینی کا احساس پڑتا دکھا دیا۔ ابان چلو یہاں سے، جاؤ تم۔ رضا نے کہا تو اس نے نفی کی۔ حرم کے بغیر نہیں۔ وہ ٹھڈائی سے بولا، یہاں سے تو شاید وہ بچ جاتا مگر مراد سے کبھی نہ بچ پاتا۔ شامر نے گن لوڈ کی اور اس سے پہلے وہ اس پر تانتا۔ نہیں میر۔ حرم گھبرائی ہوئی اس کے آگے آئی۔ جہاں ابان کو اتنی چوٹی لگنے کے بعد تقویت ملی تھی وہیں شامر سلگتے کوئلوں پر گھسیٹا گیا تھا۔ وہ ایک بار پھر کئی ٹکڑوں میں توڑ دیا گیا تھا۔ اس کا ہاتھ اس کے پہلو میں گر گیا۔ ریوالور دور چھاڑ کر وہ حرم کی طرف بڑھا اور بغیر لحاظ کے اس کے منہ پہ کھینچ کر تھپڑ مارا۔ شاید وہ یہ ڈیزرو کرتی تھی۔ تھپڑ کی شدت سے حرم دور جا گری۔ یہ کیا حرکت ہے؟ رضا چلایا، جبکہ زرینہ نے روتی ہوئی حرم کو تھاما۔ یہ سلوک کرتے ہوئے تم اس کے ساتھ رضا کے لیے ناقابل برداشت تھا حرم کو تکلیف میں دیکھنا۔ اپنا گن سمیٹ اور دفع ہو یہاں سے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حرم کی جانب اشارہ کرتے ہوئے بولا۔ ابان کو ایک ناگونا سکون ملا جبکہ حرم حیرت سے خود کو گن کہنا سن رہی تھی۔ بیوی کی یہ عزت ہے، یہ تربیت کی ہے تمہاری ماں نے؟ وہ کھا جانے والے انداز میں بولے تو شامر نے ایک جھٹکے سے کا گریبان پکڑا۔ اگر یہ سفیدی چاندنی جو تیرے سر پہ اتر رہی ہے اس کا میں 1% بھی لحاظ کر رہا ہوں تو یہ میری ماں کی ہی تربیت ہے۔ تیری تربیت یہ ہے؟ اس نے حرم کی طرف اشارہ کیا جو اس کی آنکھوں میں اپنے لیے اجنبیت محسوس کر رہی تھی۔ کوئی شناسائی کا رنگ نہیں تھا۔ یہ تیری تربیت جو نامحرموں کے سینے سے لگتی ہے۔ بہرحال اب مزید میں تجھے تیری قوم کو برداشت نہیں کروں گا۔ نکل جا یہاں سے۔ وہ دھاڑا اور انہیں پیچھے دھکا دیا۔ انکل چلے، چوٹ لگ چکی تھی۔ ابان کو یہی لمحہ مناسب لگا۔ ان کی آنکھوں میں ہلکی سی نمی جھلک آئی۔ چلو حرم، زرینہ نے اسے اٹھایا۔ نہیں، وہ بولی، میں کہیں نہیں جاؤں گی۔ حرم بری طرح رو دی جبکہ ابان اب یہ ڈرامہ مزید برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ چلو حرم، یہ آدمی تمہارے قابل نہیں۔ ابان نے سختی سے اس کا ہاتھ پکڑا۔ شامر پیٹھ موڑ کر کھڑا تھا جبکہ اماں نم آنکھوں سے حرم کو روتا بلکتا دیکھ رہی تھی۔ وہ چاہ کر بھی اسے روک نہ سکی۔ سراسر غلطی حرم کی تھی۔ وہ بچی نہیں تھی جو کچھ نہ سمجھ سکے۔ ابان چھوڑ دو حرم کو۔ فیضان نے روکنا چاہا جبکہ اب کے رضا نے فیضان کو گھورا۔ جہاں میری بیٹی کی عزت ہوگی وہ میری بیٹی وہاں رہے گی۔ انہوں نے جتاتی نظریں اماں پر ڈالی اور حرم جو اپنا آپ چھڑوانے کی تکوہ میں تھی اسے وہ کھینچ کر وہاں سے لے گئے جبکہ فیضان کو اپنا معاملہ اٹکتا ہوا محسوس ہوا۔ اس نے ایک نظر شانزے پہ ڈالی اور وہاں سے نکل گیا۔ حرم کا دماغ تو ٹھکانے لگائے گا اب۔ اسے شدید غصہ آیا۔ دیکھ لیا آپ نے؟ ان کے نکلتے ہوئے بری طرح چلایا۔ اماں اپنے بیٹے کی طرف بڑھی جو پوری طرح ٹوٹا تھا۔ ایک بار پھر غنی سے دور کھڑی تھی جبکہ وہ تینوں میر کی تڑپ پر تڑپ اٹھے تھے۔ کیا میری زندگی میں دھوکہ، بے وفائی لکھی گئی ہے؟ اس نے واس اٹھا کر دور پھینکا۔ لالا شہروز نے اس کو پکڑا جبکہ اس نے اپنے آپ اسے جھٹک کر چھڑوایا۔ میں کیوں بھول گیا تھا وہ آدمی صرف مجھے شکست دینے کے لیے میری زندگی میں آتا ہے۔ ہاں اماں، وہ بار بار مجھے ہراتا ہے۔ کیوں؟ اس نے غصے سے اماں کے آگے ہاتھ اٹھائے اور لاؤنج میں لگے مرر پہ کھینچ کر مکہ مارا۔ وہ مرتا کیوں نہیں ہے؟ وہ دھاڑا۔ ایک بے بس آنسو اس کی آنکھ سے نکلا تھا جبکہ اماں ایسے تڑپ اٹھی جیسے نہ جانے کیا ہو گیا ہو۔ نہیں شامر، انہوں نے اسے تھاما۔ شہروز اور شانزے دونوں بھیگی آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہے تھے جبکہ ونیجے بھی بھیگی پلکوں سے اس بے بس شخص کو دیکھ رہی تھی۔ ہاں آج اس کی آنکھ کا آنسو حرم سے محبت کی چیخ چیخ کر گواہی دے رہا تھا۔ میرا بچہ نہیں۔ اماں نے اس کا چہرہ تھاما جس نے جو گھٹنوں کے بل گرا تھا وہ ایک مضبوط عمارت آج ایک لڑکی کے لیے ڈھا گیا تھا۔ کیا نہیں اماں، کیا نہیں؟ کیوں آیا وہ یہاں؟ اور وہ اس سے صرف اس کی محبت مانگی تھی اور اس نے کیا میرے نصیب میں سکون نہیں؟ وہ ان کی گود میں چہرہ چھپاتے بولا۔ اماں نے شہروز کی جانب دیکھا جو سرخ آنکھوں سے اپنے بھائی کو دیکھ رہا تھا جبکہ شانزے اپنی سسکیاں دبا رہی تھی۔ مجھے افسوس ہے تم پر۔ فیضان نے غصے سے اس کی سرخ آنکھوں کو دیکھا جو رو رو کر سوکھ چکی تھی۔ اس کا چہرہ بھی جگہ جگہ سے سرخ ہو رہا تھا جبکہ بکھرے بالوں اور بکھرے حلیے میں قابل رحم لگ رہی تھی مگر اس وقت وہ کہیں سے بھی رحم کے قابل نہیں تھی۔
وہ تمہارا شوہر تھا، تم اس کے سامنے زبان کے گلے لگ گئی۔ حرم تم پاگل ہو؟ فیضان کو اس کی خاموشی زج کر رہی تھی۔ وہ چلایا جبکہ حرم نے اس کی طرف دیکھا۔ حرم گرو اب، مہربانی ہوگی تمہاری، پلیز گرو اب۔ وہ اسے جھنجھوڑ کے جس کی آنکھ سے ایک بار پھر آنسو ضرور ٹوٹا تھا، مگر وہ بولی کچھ نہیں۔ رات ہو گئی تھی، وہ اس سے دور تھی۔ سب سے ملنے کے بعد بھی وہ یہاں اپنوں میں آ کر خوش نہیں تھی، جبکہ سب اس کا حد سے زیادہ خیال رکھ رہے تھے کہیں اس کی طبیعت نہ بگڑ جائے۔ مگر عجیب تھا، آج وہ شخص اس کے چونچلے اٹھانے کے لیے نہیں تھا، تو اس کا دل بھی جیسے پتھر ہو گیا تھا۔ ہاں، اسے خوش ہونا چاہیے تھا۔ وہ 5 ماہ بعد اپنے گھر والوں میں تھی، ان لوگوں میں جن کے ساتھ وہ رہی پلی بڑھی۔ اس آدمی نے اسے کڈنیپ کیا تھا، زبردستی اپنا قیدی بنایا۔ وہ اس کی قید سے آزاد تھی، پھر وہ خوش کیوں نہیں تھی؟ اس نے دونوں ہاتھوں سے اپنے بال نوچ ڈالے۔ یہ سب کیا ہے فیضی؟ وہ چلائی۔ اسے سے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ رضا صاحب کے ساتھ شامر کا رویہ، اس کو کڈنیپ کرنا، چاچو کی بات پہ اکھڑ جانا، یہ سب کیا تھا؟ یہ کیسا لنک تھا؟ فیضان نے اس کے بہتے آنسوں کو افسوس سے دیکھا۔ شامر رضا چاچو کی فرسٹ وائف کا بیٹا ہے، وہ آنٹی رضا چاچو کی فرسٹ وائف ہے۔ اس نے حرم کو دھیمی آواز میں جیسے حقیقت بتائی۔ حرم حیران آنکھوں سے اس کی صورت تکنے لگی، جو رفتہ رفتہ اسے سب بتاتا چلا گیا۔ جب اسے اپنی مما کو شانزی کے بارے میں بتایا تھا، تب انہوں نے رضا اور امان کے بارے میں اس کو ساری حقیقت بتائی تھی، ان کے ساتھ کیا ہوا اور کیسے انہیں گھر سے نکالا گیا تھا۔ اسی طرح فیضان نے بھی حرم کو بتایا تو حرم سر تھام گئی۔ اب اسے اس کے جنون کا اندازہ ہو رہا تھا۔ وہ اس چیز پر شدید افسوس کی وجہ سے سمجھ نہ سکی، مگر نہیں، دیر نہیں ہوئی تھی۔ وہ اس کا شوہر تھا، وہی اس کا گھر تھا، وہی سب کچھ تھا، وہ اس کا عشق تھا۔ ہاں، وہ دیوانی تھی اس کے لیے۔ اس نے بے دردی سے آنسو صاف کیے اور گھڑی کی صورت دیکھی جو رات کے 2 بجا رہے تھے۔ فیضان تم مجھے وہاں چھوڑ دو پلیز، حرم نے پاؤں میں چپل ڈالتے ہوئے کہا۔ فیضان نے اس کی جانب دیکھا۔ تمہیں لگتا ہے معاملہ اتنا بگڑ چکا ہے، اب وہاں کوئی تمہیں پوچھے گا؟ تمہیں وہاں احتجاج کرنا چاہیے تھا، وہیں تمہیں اس کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے تھا، تمہیں نہیں آنا چاہیے تھا حرم۔ فیضان نے کہا تو اب اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا ہوا شدید دکھ ہوا تھا۔ میں نے کیا تھا؟ وہ من منائے، اسے احتجاج نہیں کہتے۔ فیضان نے گھورا، یہاں آ کر تمہیں کیا معاملہ؟ یہ بد دعاؤں کا گھر ہے حرم، میرا یہاں دم گھٹتا ہے، تو تم کیسے رہ سکتی ہو؟ یہ گھر ان 3 معصوم بچوں کی بد دعاؤں سے برباد ہو چکا ہے۔ وہ بولا تو حرم کا دل جیسے پھٹنے کے قریب تھا۔ اسے شامل کی شدت سے یاد آ رہی تھی۔ تم چلو پلیز، وہ بولی تو فیضان نے اس کو دیکھا۔ پلیز فیضی، میں اپنی غلطی سدھارنا چاہتی ہوں، وہ سسکی۔ فیضان نے گہرا سانس لیا اور حالت اس کے سامنے تھی، مگر وہ اب بھی میچیورٹی نہیں دکھا رہی تھی۔ وہ ایک امید کے تحت اٹھا۔ حرم اور وہ بے وقت گھر سے نکلے۔ ابان ابھی 1 گھنٹے پہلے ہی کیا تھا۔ اس نے حرم سے ڈھیر ساری باتیں کی جن کا ہوں ہاں میں وہ جواب دیتی رہی تھی۔ اسے افسوس بھی تھا کہ اس کی وجہ سے اسے کتنی مات کھائی تھی۔ وہ دونوں اس سے پہلے باہر نکلتے کہ رضا صاحب کی آواز پر رکے۔ کہاں جا رہے ہیں آپ دونوں؟ انہوں نے پوچھا تو حرم غصے سے پلٹی۔ اپنے شوہر کے گھر۔ کیا آپ مجھے روکیں گے؟ اس نے ان کی آنکھوں میں دیکھا۔ حرم، وہ آپ کے قابل نہیں ہے۔ انہیں غصہ آیا۔ شامر کا ہاتھ اٹھانا انہیں بالکل اچھا نہیں لگا تھا، اور شاید وہ یہ بھول گئے تھے کہ وہ کتنی بار اس عورت پہ ہاتھ اٹھاتے رہے تھے۔ آپ بھی اماں کے قابل نہیں تھے، تبھی اللہ نے انہیں آپ سے الگ کر دیا۔ میرے میر کیا ہے یہ میں اچھے سے جانتی ہوں، اگلی بار آپ اس طرح بالکل نہیں بولیں گے۔ وہ بھرائی آواز میں مجھے انہیں خاموش کر گئی۔ چلو فیضی، اس نے کہا تو وہ دونوں باہر نکل گئے، جبکہ پیچھے رضا سر تھام کے بیٹھ گئے۔ شامر کا چہرہ انہوں آنکھوں میں لہرا گیا، جبکہ ایک اور چہرہ جس کی شبیہ بھی ان میں ملتی تھی، اور اس کے علاوہ ایک لڑکی بھی تھی۔ وہ جب سے وہاں سے آئے تھے بے چین تھے، اور ان کی بے چینی زرینہ خوب محسوس کر رہی تھی، اور آج انہیں اپنے اندر موجود کمی کاٹ کھا رہی تھی۔ اس وقت سب کو تمہاری ضرورت ہے، اور جس طرح تم میری ماں، بہن، بھائی کا خیال رکھ رہی ہو، میں شکر گزار ہوں تمہارا۔ شہروز نے ونیسے کو دیکھا جو اماں کے کمرے میں انہیں دوائیں دے کر آئی تھی، جبکہ شانزے کو دودھ بھی دیا تھا، مگر شامر کا دروازہ بجانے کی کسی میں ہمت نہیں تھی۔ شکر گزاری کی بات نہیں ہے، فیملی ہے میری بھی، وہ بولی اور کمرے میں بکھرا کپڑا سمیٹنے لگی۔ تم اتنی اچھی بن رہی ہو، یہ ہو گئی ہو۔ شہروز نے اس کے بدلے برتاؤ کو حیرت سے محسوس کیا۔ وہ لڑکی اندر سے اتنی احساس ہوگی، اس کی سوچ میں بھی نہیں تھا۔ مجھے نہیں پتا میں اچھی ہوں یا نہیں، مگر میں نے رشتے نہیں دیکھے، اور اب جب مجھے رشتے ملے ہیں تو میں کم عقلی کے باعث انہیں کھونا نہیں چاہتی۔ وہ سنجیدگی سے جواب دیتی واش روم میں چلی گئی، جبکہ شہروز خاموش ہو گیا۔ آدھی رات سے زیادہ گزر چکی تھی، نیند آنے کا نام نہیں لیتی۔ اس نے دکھتی آنکھوں کو اپنی پوروں سے دبایا۔ سر دبا دوں؟ ونیزے نے اس کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ نہیں، تم ریسٹ کرو، اس نے نفی کی تو ونیزے نے سانس گرتی بیڈ پر بیٹھ کر اس کا سر دبانے لگی، جبکہ شہروز نے ہار مانتے اس کی گود میں سر رکھ لیا۔
जानती वनी से वो बेचैन है तो हम में से किसी को सुकून नहीं मिलेगा। हरम भाभी ने बहुत गलत किया। 28 सालों में मैंने इन्हें 5 माह में हंसते मुस्कुराते देखा था, मगर वो फिर से भी बैग जर गए हैं। वो बोला जबकि वनीज़ें खामोश रही। हकीकत में हरम ने इन्हें बहुत मायूस किया था। एक सवाल पूछूं? वनीज़े ने कुछ सोचते हुए पूछा। शहरोज़ इसकी आंखों की हरकत सर में महसूस कर रहा था। वो आदमी आपके वालिद थे? इसने कुछ झिझकते हुए पूछा। हाँ, रज़ा खान वो बाप है हमारा। मेरी माँ इसकी जितनी खूबसूरत नहीं थी, इसने मेरी माँ को घर से निकाल दिया था। जब हम घर से निकले थे लाला सिर्फ 5 साल के थे। वनीज़े 5 साल के बच्चे की हाइट से इरिटेट हुई। सारा सारा दिन क्या किसी माँ का कलेजा ये बर्दाश्त करेगा? सिर्फ 5 साल 2 साल का था, मैं बोलना भी नहीं चाहता था। जबकि हमारी बहन कैसे हुई हम नहीं जानते। बस एक रात अम्मा की चीखों से डरकर हम दोनों भाई एक कमरे में दबक के बैठे थे। सारी रात अम्मा की चीखें हमारे कानों में लदरती रही। मैं और लाला रोते रहे, बहुत रोए। हमें लगा हमारी अम्मा मर जाएगी, मगर फिर एक औरत जो अम्मा के साथ ही थी सुबह हमें हमारी बहन देखने दिखाने लगी। मैं तो कुछ नहीं जानता था, मगर लाला बताते हम दोनों इसकी पैदाइश के बिल्कुल खुश नहीं थी, जबकि अम्मा के साथ रोज़ हम दोनों भाई रोते थे। ये तो अल्लाह का शुक्र है हमारे नाना की छत थी, वरना प्लीज़ शहरोज़ इससे ज़्यादा वनीज़े में सुनने की ताकत नहीं थी। इसने इसके लबों पे हाथ रखा और अपना माथा इस पर हाथ टिका दिया। शहरोज़ की भीगी पलकें मज़ीद भीग गई थी, जबकि वनीज़े सिसक रही थी। दुनिया बहुत ज़ालिम है। थोड़ी देर बाद वो उसकी आंखों में लपक थी, जैसे इसके ज़ख्मों पे मरहम रख रही थी। दरवाजे की बेल बजी तो वनीज़े ने सर उठाया, जबकि शहरोज़ भी उठ बैठा था। इससे पहले आने वाला बैल पे हाथ रखकर भूल जाता, वो एक जैसे लगाकर उठा और वनीज़े भी इसके पीछे गई। जबकि तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद अम्मा तस्बीह कर रही थी, वो भी इस वक्त बेल बजाती करके बाहर निकल आई। वनीज़ा और शहरोज़ को वो देख चुकी थी। शहरोज़ ने दरवाज़ा खोला तो हरम को देखकर इसे गुस्सा आया, मगर रिश्ते का लिहाज आड़े आया। क्यों आई हैं आप यहाँ? इसने इसे अंदर आने ना दिया। प्लीज़ शहरोज़, मुझे मीर के पास जाना है। वो बिल्कि छोड़कर भी आप ही गई थी। शहरोज़ ने सख्ती से सिकुड़ा। प्लीज़ मुझसे गलती हो गई, प्लीज़ मुझे शामिर के पास जाने दो। वो इसके आगे हाथ जोड़ने लगी, जबकि शहरोज़ आगे से हट गया। इसने एक नज़र फैज़ान को देखा। हरम इसके हटते अंदर आ गई। हालांकि फैज़ान का लिहाज करना नहीं चाहता था, मगर वो अपनी लाला को खूब जानता था। ये लड़की अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रही थी, अब तभी इसने फैज़ान को अंदर आने दिया। हरम भागती हुई अपने कमरे की जानिब गई कि इसकी शॉल वही खड़ी अम्मा के कदमों के पास रह गई। इसने अपने रूम का दरवाज़ा बजाया। मीर, मीर दरवाज़ा खोले। मीर, मुझे कहीं नहीं जाना। मीर, मुझे आपके पास रहना है। मीर, मैं कहीं नहीं जाऊँगी। प्लीज़ मीर, हरम सिर्फ़ आपसे मोहब्बत करती है। प्लीज़ मीर, मुझे माफ़ कर दें। वो बजाते-बजाते नीचे बैठकर पूरी तरह रोती, जबकि एक झटके से दरवाज़ा खुला। हरम ने सर उठाकर इसकी जानिब देखा, जो सपाट चेहरे से इसकी जानिब देख रहा था। इसे वो पहले वाला रोज़ वाला शामिल लग रहा था। शामिल ने हरम को एक नज़र देखा और नीचे खड़े सब पर नज़र डाली। शहरोज़, चौकीदार से कह दो आज के बाद ये लड़की इस घर की दहलीज पार ना करे। इसने संजीदगी से कहा। नहीं मीर, हरम तड़पी। मीर, मुझे माफ़ कर दें। इसने शामिर के हाथ पाँव पकड़ने चाहे, जबकि शामिर पीछे हटा। उसके पास से हटता वो वहाँ से गुजर के नीचे आया और सीधा घर से बाहर निकल गया, जबकि शामिर शामिर की चीखों पुकार से हरम ने घर सर पर उठा लिया था। माँ ने हरम पर एक नज़र डाली और अंदर चली गई। ये लड़की इनके बेटे को वहशी न बना दे तो इनके लिए भी अहमियत नहीं रखती थी। शहरोज़ तो पहले ही दिन से बदज़न था। वहाँ से निकल कर अपने रूम में चला गया, जबकि वनीज़े ने इसको रोते सिसकते वजूद पर निगाह डाली। फैज़ी, ले जाओ इसे, वनीज़े ने कहा। ऐसे मत कहो वनीज़े, हरम से इसकी थोड़ा टाइम दो। हरम, ज़ख्म वक्त पड़ते हैं। प्लीज़ मुझे यहीं रहने दो। हरम ने वनीज़े का हाथ थामा। वो शख्स घर नहीं आएगा अगर तुम यहाँ रही। बस तुम ये कहोगी, जल्द मना लो इन्हें। वो इसका गाल सहलाकर अपने रूम में चली गई, जबकि हरम का बस नहीं चला था बंद हो जाए, वो इस कमरे में कैद हो जाए वहाँ। मगर वो कभी भी शामिर को नहीं छोड़ सकती थी। इसने आंसू साफ किए और फैज़ी की जानिब देखा। शायद वो ज़िंदगी की पहली अक्लमंदी कितने कर जा रही थी। वो फैज़ी, सफदर का पता है तुम्हें? प्लीज़ इसी से रब्ता करो। गाड़ी में बैठते हुए अपना सर थाम कर बोली। इससे इससे क्या होगा? फैज़ान ने पूछा। मुझे शाहपहरी जाना है, मगर वहाँ नहीं जाऊँगी मैं। वो ज़िद्दी लहजे में बोली तो फैज़ान मुस्कुरा दिया। एक झटके ने काफ़ी अक्लमंद कर दिया तुम्हें, इसने कहा, मगर हरम ने जवाब ना दिया। सफदर से घर की चाबी लेकर वो शाह पैलेस में आके थी। ये आकर एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास था। ऐसा लगता जैसे वो उसे देख रहा हो, इसके पास हो, इसके इर्द-गिर्द हो। मगर हरम का दिल बोझल सा था। शामिर इसके लिए ख़ास था, मगर वहाँ खान हाउस में और भी बहुत लोग थे जिनको नाराज़ करके इसे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था।
इसने सदर को शामिर को अपनी यहाँ मौजूदगी के बारे में बताने से सख्ती से रोका था और फैज़ान को भी कि वो वहाँ घर में भी किसी को इसकी शाह पैलेस में मौजूदगी का ना बताए। शाह पैलेस में मुलाजिम इसी तरह अपने काम वक्त पर कर रहे थे जिस तरह पहले करते थे, जबकि इसे सकीना कहीं दिखाई नहीं दी, मगर वो शाह पैलेस को अपना घर मानती थी। तभी वो अपने रूम में बैठी शामिर के कपड़ों को बेड पे फैलाए देखी जा रही थी। वो ब्लैक शर्ट में अच्छा लगता है, इसकी आँख से आंसू टपका। काश फिर सब ठीक हो जाए। इसके परफ्यूम रूम में स्प्रे करते हुए इसकी खुशबू में जैसे नहाती जा रही थी। इसकी एक शर्ट को अपने बाजू में जकड़े हुए इसके परफ्यूम के सहारे फिजा में करती इस खुशबू को जैसे वजूद में उतारना चाह रही थी। मान जाओ मेरी, वो नीचे बैठ के इसकी शर्ट के कलर पर अपने रब रख गई, जबकि चेहरा सुर्ख हो गया। बाहर चाँद को तकते हुए वो गुजरने वाले 2 दिन को सोच रही थी। 2 दिन से यहाँ थी, इसे ये बात पता होगी? आप ये बात कैसे कह सकते हैं? हरम दोबारा चली गई। अबान का पारा रज़ा पे शदीद हाई हुआ। वो अपने घर चली गई अबान, और वो ठीक गई है। इसकी जगह वहीं है। इसे अपने शौहर के साथ ही रहना चाहिए। रज़ा ने सख्ती से कहा। इसका चिढ़ने का अंदाज इन्हें एक आँख ना भाया, जबकि ज़रीना भी खामोश थी, जैसे रज़ा के फैसले से मुत्तफिक हो। जहाँ वो खुश थी वो तो वही खुश थे। ग्रेट, इतनी मेहनत से इसे यहाँ दोबारा लाया और आप कितने सुकून से ये बात कह रहे हैं। वो धाड़ा तो रज़ा ने खुद से इसकी जानिब देखा। चाह क्या रहे हो तुम? रहा सा इस घर का सुकून भी गारत कर दूँ? मैं अब सब ट्रे करना चाहता हूँ। रज़ा बोले तो अबान ताली बजाता तंजिया मुस्कुराहट से उन तक पहुँचा। मतलब 100 चूहे खाकर आज बिल्ली मैडम को हज की सूझी है। वो नफरत से बोला। ज़बान संभालो अपनी। रज़ा गुस्से से चिल्लाए। अबे चुप कर बुड्ढे। इसने इन्हें दोबारा गिरबान से पकड़कर सोफे पर धक्का दिया। जरीना तो ये मंजर देखकर दंग रह गई। तेरी वो मरीज़ा बेटी मेरी ज़िंदगी के लिए बहुत ज़रूरी है। वो अपनी असलियत दिखाता इनके मुंह पर फंकारा। तुम्हारी बातों में मुझे आना ही नहीं चाहिए था। तो ये है तुम्हारा असल रूप? वो इसका हाथ अपनी गर्दन से हटाने लगे। हाँ, ये है मेरा रूप। तेरी बेटी को बेचना चाहता हूँ मैं, और वो ना मिली तो तू और ये तेरी बीवी दोनों ज़िंदा नहीं बचोगे। वो उनका जबड़ा पकड़ता भंकारा। असलियत तो वो इन्हें वाज़ेह कर चुका था, मगर इन दोनों बुड्ढा बुड्ढी को ऐसे नहीं छोड़ सकता था। खड़ा हो। इसने रज़ा को उठाया। इस वक्त घर पर फवाद की फैमिली मौजूद नहीं थी, तभी वो शेर हो रहा था। छोड़ो अबान। ज़रीना ने रज़ा का गिरबान छुड़वाया कि इसने इसके मुंह पर बगैर लिहाज के चमाट मार दिया। चुप कर, और दोनों को खींचता हुआ इनके रूम में ले गया। रज़ा ने लाख खुद को छुड़ाने की कोशिश की, मगर वो एक जवान मर्द का मुकाबला इस उम्र में नहीं कर पा रहे थे। इन्हें हैरत थी, ये वो लड़का है जिसे वो अपनी फैमिली का हिस्सा समझते रहे। अबान को इनके रूम में बांध कर मुँह पर टेप लगा के आगे से लॉक लगा चुका था। अगर कोई आता तो वो कोई भी झूठ बोल देता, मगर हरम एक बार फिर इसके चुंगल से निकल चुकी थी। वो गुनाह ही गया था। शामिर कमिश्नर साहब खुद उठ के इससे मिले, जो संजीदा और बेतासुर था। वैसे मैं खुद आ जाता, मगर अफसोस मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। उन्होंने आज इसे अपने घर बुलाया। तभी माजरत करते हुए बोले। वो कुछ ना बोला। क्या लोगे? चाय पानी कोई चीज़? उन्होंने पूछा तो वो नफ़ी में गर्दन हिला गया। डैड किसी भी मेहमान से पूछते नहीं है यार, बस सर्व करते हैं। अंग्रेज़ी लबो लहजों में अंग्रेज़ी जवाब से इसे अपने अकब से आया। इसने गर्दन मोड़कर देखा। वो एक प्यारी सी लड़की कैजुअल ड्रेस में ट्रॉली खींचती अंदर ला रही थी। शामिर ने नज़रों का ज़ाविया बदला। मेरी बेटी है, न्यूयॉर्क में होती है, वहीं पली बड़ी है, अपनी दादी के पास, तभी उर्दू नहीं जानती। उन्होंने मुस्कुराकर अपनी बेटी को देखा। शामिर अभी बेतासुर ही रहा। मगर मुझे उर्दू समझ आती है डैड। वो अभी इंग्लिश में बोली तो वो हंसती है, जबकि शामिर उकताहट का शिकार था। हाउ मच शुगर? इसने पूछा तो शामिर ने नफ़ी की। मैं शुगर नहीं लेता, इसने कहा तो लड़की ने शान चुकाकर कॉफ़ी का मग इसके हाथ में दिया। सर, आपने मुझे किसी ख़ास काम के तहत याद किया था? वो बोला तो उन्होंने कॉफ़ी के सप लेते हुए इस्पात में सर हिलाया। ये फ़ाइल है, इसे स्टडी करो। ये तस्वीर भी है इस पे, नाम डॉक्टर अबान। ये इतने मज़हब पेशे से जोड़ने के बावजूद लड़कियों की स्मगलिंग करता है। उन्होंने जैसे इसके सर पे बम फोड़ा। इसे झट तस्वीर खोलकर देखी और अपनी मुठ्ठियाँ बीच कर रह गया। आर यू ओके? वो लड़की इसका सुर्ख चेहरा देखने लगी, मगर शामी ने नज़रें न हटाई। वो इसके इतने करीब था और फिर भी वो कुछ जान ना पाया। कमिश्नर आप भी बोल रहे थे, मगर वो तो अबान की तस्वीर मुट्ठी में दबोच चुका था। सामने बैठी लड़की ने हैरत से इसे देखा। और तुम्हारे साथ इस केस में आईसीआई एजेंट सनम हेल्प करेंगी? इसने अपनी बेटी की तरफ इशारा किया। मगर मुझे किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं, वो बोला और उठा। इसके पीछे बहुत बड़े बड़े गैंगस्टर का हाथ है, तुम्हें खुफिया पुलिस की ज़रूरत पड़ सकती है। उन्होंने जैसे हतमी अंदाज में कहा। वो इस लड़की की सूरत देख कर रह गया, जो संजीदा थी।
तुम चाहो तो केस स्टडी कर सकते हो। उन्होंने कहा तो वो चाहते हुए इनकार ना कर सका। ये पहला केस होगा सनम का, तुम्हारे साथ अटैच करने का मकसद ये है कि वो तुमसे कुछ सीख सके। उन्होंने कहा तो वो सर हिला गया। अब वो कमिश्नर की बेटी को बर्दाश्त करके मजीद अपनी बर्दाश्त आजमा रहा था। गुड लक, इनके कहने पर सनम ने झुककर इनसे माथे पर प्यार लिया और शामिर के साथ बाहर आ गए। दोपहर दो का वक्त था। तुम्हारा नाम क्या है? सर ने इस पुरकशिश शख्स को देखा। सर, इसने संजीदगी से कहा और गोगल्स अपनी आंखों पे लगाकर बाहर की गाड़ी की तरफ बढ़ा। वाह! सर काफ़ी इम्प्रेस हुई। इतना उखड़ू आदमी तो इसने पहली बार देखा था। वो भी इसकी गाड़ी में बैठ गई। जबकि शामी ने गाड़ी स्टार्ट कर ली। मुझे अपनी टीम पर पूरा भरोसा है। मैं अपनी टीम पर इजाफा नहीं चाहता और ना मुझे किसी खुफिया एजेंट की ज़रूरत है। वो इंग्लिश में संजीदगी से इससे बात कर रहा था। ओके, तो सर आप ओवर कॉन्फिडेंट है। जो आदमी पीछे 5 साल से ये कारोबार कर रहा है, आपके शहर में रहते हुए आप इसे पकड़ ना सके और आपको अपनी टीम पर भरोसा है। स्ट्रेंज, बाय द वे ये डिटेल मेरी कलेक्ट की हुई है। इसने अंग्रेजी में टका से जवाब दिया। शामिर दांत पीसते रह गया। हाँ, ये इसकी गलती इसी की थी कि वो इस नीच को पहचान न सका। मुझे अपने काम में ज़्यादा बोलने वाले लोग पसंद नहीं। शामिर ने इसको घूरा। आप घूरकर मुझे दबाना चाहते हैं मिस्टर ओवर कॉन्फिडेंट? अब वो ज़्यादा फैल रही थी। शामिर ने एक झटके से गाड़ी रोकी। गेट आउट, वो सख्ती से बोला। व्हाट? वो हैरान हुई। और उर्दू में दफ़ा हो जाओ। कैप लॉक लॉक और पहुँचो इस एड्रेस पे जो मेरा पीए है, पीए तुम्हें सेंड करे। वो मिले जुले लहजे में बोला। सनम का चेहरा खौफ से सुर्ख पड़ गया। वो गाड़ी से बाहर निकल गई जबकि ओशन से गाड़ी बढ़ा ले गया। अमेज़िड, वो पैर पटक कर कैब का वेट करने लगी। चंद सेकंड में ही एक लोकेशन इसे सेंड कर दी गई थी। सफदर शाह पैलेस के सामने खड़ा वो सफदर को पुकारने लगा जो फक चेहरे से इर्द गिर्द देख रहा था। क्या मसला है तुम्हारे साथ? इसने अपनी टीम की मीटिंग शाह पैलेस में ही रखी थी। जबकि सफदर परेशान हो बैठा था। वो हरम की मौजूदगी के बारे में जान गया तो लास्ट में इसका बैंड बजा देगा। सर हम यहाँ मीटिंग करेंगे। क्यों, क्या मसला है? वो अखड़ कर बोला। मेरा मतलब है। शट अप, इसे टोक दिया। इतने में एक कैब आकर रुकी। इसने गॉगल्स के पीछे से इस लड़की को देखा जो गुस्से में देख रही थी। इसके अलावा भी वहाँ बाकी मेंबरान आ गए। चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। सफदर मरे मरे कदमों से अंदर बढ़ा। जबकि जिस तरह मर मर के वो चल रहा था, सनम इसमें आकर ज़ोर से बजी। यू मैट, यहाँ सब पागल हैं क्या? वो चिल्लाई। शामिर ने नागवारी से पलट कर देखा। सॉरी मैम। सफदर शर्मिंदा हुआ। सारी टीम को लॉन्च में वेट करने का और केस को रेड करने का कहकर वो खुद फ्रेश होने के साथ जैसे ही अपने रूम की तरफ बढ़ा, सफदर किसी जिन की तरह इसके आगे आया। सर यहाँ नीचे ही फ्रेश हो जाए, फिर हमें लेट नहीं होगा, वो हिचकिचाते हुए बोला। शामिर ने घूर कर इसे देखा। तुम खुश हो जाओ। वो उल्टे कदमों में इसी तरह पलट गया और अपनी यूनिफॉर्म को कैजुअल लुक देने लगा। वो पहले यूनिफॉर्म में इतना डैशिंग लग रहा था, अब इसे कैजुअल लुक देता हुआ तो वो और भी जानलेवा लगने लगा। ऊपरी 2 बटन खोलकर इसने बाजू फोल्ड किए और केस फाइल को हाथों में दबाए। इस फाइल पे कम और इस पर ज़्यादा तवज्जो दे दी। इस लड़की के हाथ से इसने फाइल खींची और अबान के घर का एड्रेस देखने लगा जो शहर से काफ़ी दूर था और अब सबके आइडियाज़ ले रहा था। जबकि इसके सामने सब तार की तरह सीधे अपनी अपनी राय दे रहे थे। अब इसने सनम की तरफ देखा जो इसको घूर रही थी। मिस खुफिया पुलिस, आपके क्या कहने हैं? वो तंजिया बोली तो सनम होश में आई। आप लोगों से तो ज़्यादा अच्छे कहने हैं मेरे। वो मुंह बगाड़ के बोली। शामिर ने जब्त फाइल टेबल पर उसकी जानिब देखा। अव्वल तो आप इस केस से गैर हाजिर है। वो शुरू हुई। सबके चेहरों की दबी दबी मुस्कुराहट। शामिर ने खौनखान नज़रों से सबको देखा जो फ़ौरन सीधा हुए। अब बात यह है कि डैड ने जब आपको काम की बात करो इसे बीच में टोका। कि काम की बात है? वो खुद से हुई। इससे पहले से ही मैं इस आदमी को फोकस कर रही हूँ तो जिससे मुझे बस इतना मालूम है ये बंदा अपने घर पर नहीं पाया जाता जो इसका एड्रेस है वहाँ ये नहीं होता। क्या फ़ुज़ूल बात है? शामिर ने तेवरी चढ़ाई। ये फ़ुज़ूल बात नहीं है। इसके घर का मीटर पिछले साल से बंद है जबकि इसकी लोकेशन इसी घर की है जो कच्ची आबादी में है। वो चिढ़ कर बोली तो शामिर ने इसकी रिश्वत को दिल में सराहा ज़रूर मगर ज़बान पर ना लाया। तो कहाँ हो सकता है ये? इसने सोचा। फिर एक और घर इसके दिमाग में क्लिक हुआ। ओके, जिस घर का मैं एड्रेस देता हूँ शाम तक इसे ट्रेस करो। अगर ये वहाँ देखो देखो तो जिस ड्राइवरिंग में देखो सबसे पहले इन्फॉर्म करना और ग, ग, के बाकी लोगों के पर घर के बाकी लोगों पर भी तवज्जो रखना। इसे सपाट से अंदाज में कहा तो सब ने सर हिलाया। कुछ खा कर जाइएगा सब। इसने एक नज़र सब पे डाली। मैं दुश्मनों के घर नहीं खाती। सदम ने घूर कर इसको देखा जबकि वो शानिज का गया। बाकी सब इनको हैरत से देख रहे थे।
وہ टिक टिक करती बाहर निकल गई, जबकि सफदर अब भी ऊपर देख रहा था। फिर इसने शामिर को देखा, जिसने अबान की तस्वीर को दो टुकड़ों में तकसीम किया और उठाकर इसका सेल बजा। ओके, मैं आता हूँ, इसने कहा, और सभी अलविदाई नज़र डालकर निकल गया, जबकि सफदर ने सुख का सांस लिया। शामिर अम्मा बुखार में इसको पुकार रही थी, और जब इनके रूम में आया तो शानजे को रोते हुए, जबकि फनीजे को इनके सर पर पट्टियां रखते पाया। शहरोज शायद खौफ में था। अम्मा वो उनके नज़दीक किया। शामिर अम्मा ने इसका चेहरा थामा। मेरा बच्चा, वो उसके हाथ चूमने लगी। वो 4 दिन से घर नहीं आया था। इसे अपनी गलती का एहसास हुआ। अपने आप को यूँ तकलीफ ना दो शामिर। उन्होंने उसका चेहरा अपने हाथों में भरा। आप ये भी कह रही हैं और अपनी हालत से मुझे तकलीफ भी पहुंचा रही हैं। इसने इनका माथा चूमा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुस्कुरा दी। ये तो अच्छी बात है। वो बगैर मुस्कुराए इनको देखने लगा। खाना खाया अम्मा ने? इसने वनीसे को देखा। नहीं, इसे नफ़ी की। ओके, आप ला दें, इसने इसने कहा, तो वनीसे ने इस बात में सर हिलाया। शानज़े, तुम भी बैठो, हल्का ना, अम्मा ठीक हो जाएगी, वनीसे ने कहा, तो शानज़े अम्मा से लग कर बैठ गई। शामिर अब इनसे हल्की फुल्की बातें कर रहा था कि फ़ोन की बीप बजने लगी। हाँ बोलो फवाद, इसने कहा, तो यार घर आ जाऊँ? वो बोला। ओके, मैं वेट कर रहा हूँ, इसने कहकर फ़ोन रखा। अम्मा मैं आता हूँ, इसने एक बार फिर इनके हाथों को हकीकत से चूमा और बाहर निकल गया। फवाद भी तब तक आ चुका था। वो दोनों ड्राइंग रूम में बैठे खाना और वनीज़े ने कब दे गई थी। वो यार एक बात करनी थी, फवाद ने कहा। हाँ बोलो, शामिर इसकी तरफ मुतवज्जा था। यार वो मैं शानज़े को, मेरा मतलब, अपने साथ लेकर जाना चाहता हूँ, फवाद ने कहा, तो शामिर ने साइड पर कप रखा। देखो फवाद, अभी सिर्फ बात पक्की हुई है और मेरी बहन इमेच्योर है। मैं नहीं चाहूँगा किसी मजबूत रिश्ते से पहले तुम इसे यूँ लेकर घूमो। इसे मुनासिब लफ्ज़ों में जवाब दिया। क्या यार, मॉडर्न ज़माना है, और वैसे भी कह तो ऐसे रहे जैसे तुमने हरम भाभी। शट अप। फवाद, लिहाज कर रहा हूँ तो सर पे मत चढ़ो। वो नागवारी से बोला, तो फवाद इसके तल्ख़ लहज़े पे गुस्से से देखा। मैं सच कह रहा हूँ, कड़वा क्यों लग रहा है? खैर मम्मा मंगनी की नहीं, शादी की डेट फिक्स करने आएंगी, वो बोला, तो शामिर ने से घुरा। मैंने तुम्हें कहा था शादी इसकी पढ़ाई पूरी होने से पहले नहीं होगी। मेरे पास कर लेगी पढ़ाई पूरी, वो बोलकर उठा। शामिर खामोशी से देखने लगा। चलता हूँ, उसने हाथ बढ़ाया। चले ही जाओ, वो सख्ती से बोलकर वहाँ से उठकर चला गया। लिहाज नाम की चीज़ नहीं इस बंदे में, फवाद ने सोचा, और ख़ुद भी चला गया। फैज़ान इनके घर के दरवाजे के बाहर खड़ा यही सोच रहा था कि अब क्या करे। मॉम डैड तो अपने फ्रेंड्स के बेटे की शादी पर कराची गए हुए थे और 2 हफ्तों बाद आना था। तब वो शानजे का सवाल लेकर इसके घर जाते, मगर वो पहले ऐसा माहौल बनाना चाहता था जो इसके माँ बाप को इनकार की शक्ल ना दिखे। और अपने घर जाना तो इसने काफ़ी टाइम से छोड़ा हुआ था, और इनका इसका धम घुटता था। इसने दरवाज़ा बजाया, मगर हैरत ही दरवाज़ा खुला था। वो अंदर रह गया। तुम, शामिर की गरज पर इसकी टांगें काँपी। यहाँ का क्या कर रहे हो? वो चिल्लाया। फ़िज़ा ने कमरे से निकलती इस खातून को देखा, जिसकी तबीयत शायद ठीक नहीं थी। मैं अपनी चाची के घर आया, आपको कोई मसला है? वो झिझकते हुए बोला। शामिर तो इस रिश्ते पे अश अश कर उठा, जबकि शानज़े हैरान रह गई, और अम्मा भी इसकी जानिब देख रही थी। सलाम चाची जान, वो उनके नज़दीक किया। देखिए प्लीज़, आप अपने जल्लाद बेटे से बचा लें, वरना वो मेरी हड्डियों का कीमा बना देगा, प्लीज़। वो अम्मा के नज़दीक झुककर बेचारगी से बोला। तेरी हिम्मत इतनी? शामिर इसकी जानिब लपक कर इसकी शर्ट दबोच चुका था। शामिर, अम्मा ने इसे पुकारा। इसने इनकी जानिब देखा। छोड़ो इसे, वो मेहमान है, उन्होंने संजीदगी से कहा, तो फैज़ान जहाज़ चौड़ा हुआ। शामिर गुस्से से खौल उठा। और तुम्हारी खातिर मदारत करूँ? इसने इस तरह इसको झटके से खींचकर सोफे में पटका। फैज़ान का दम निकल रहा था। शानज़े को इस सीरियस सिचुएशन पे काफ़ी हँसी आ रही थी, जबकि वनीज़े भी अपनी मुस्कुराहट छुपा चुकी थी। तुम इसे छोड़ोगे तो वो बैठेगा ना? अम्मा ने शामिर को टोका, जो अब इसकी शर्ट दबोचे से नज़रों से खा जाने का इरादा रखता था। शामिर ने इसे झटके से छोड़ा तो वो गिरा, और अपनी शर्ट ठीक करता हुआ उसके साथ ही बैठ गया। तभी शहरोज़ भी दाखिल हुआ। लाला, इसने पुकारा। ओ शहरोज़, अम्मा के रिश्तेदार हैं, आए हैं, खातिन मदारत करो। इसने पुकारा तो शहरोज़ शर्ट के बाजू चढ़ाता इस तक पहुँचा, इसके बराबर आकर खड़ा हो गया, ऐसा कि फैज़ान रो देने के करीब था। फैज़ान ने हलक में अटकता थूक निकाला। हाय मोहब्बत, किन गेंडों में फंसा दिया। इसने सोचा। वनीज़े ने इसको चाय का कप उठा कर दिया, जिसे शहरोज़ ने उचक लिया। पी के आया होगा अपने घर से, वो घूर कर बोलता। फैज़ान ने ताबेदेरी से सर हिलाया। वनीज़े पीछे हट गए। कैसे हो बेटा आप? अम्मा ने सवाल किया, जबकि फैज़ान का दिल किया कि दे के रोना आ रहा है, मगर हिम्मत से बोलना चाह के शामिर बोल उठा। डेढ़ फसली ठीक ही लग रहा है अम्मा।
वो इसके कंधे पे हाथ मारता हुआ बोला, जबकि फैज़ान कंधा सहला कर रह गया और फर्माबरदारी से सर हिलाने लगा। बस बहुत हो गया, अम्मा को गुस्सा आया। हटो तुम दोनों इस पर से। वो बोले तो दोनों बड़बड़ाते हुए उठे। 2 मिनट में इसे फारिग करने, वरना अपनी कोई हड्डी तुड़वा लेगा। शहरोज़ ने कहा और दोनों उठकर अपने रूम्स में चले गए, जबकि फैज़ान ने अपना कब से रुका साँस बहाल किया। अम्मा इसे तवज्जो से देखने लगी, जबकि अब वहाँ उन दोनों के सिवा कोई नहीं था। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, उन्होंने कहा। क्या जिस रिश्ते से मैं आपको पुकारूँ आप उसको फ़ौक़ियत देंगी? वो उठकर उनके कदमों में बैठा। क्या चाहते हो? अम्मा ने इसको देखा। आपकी बेटी को। वो सर झुकाए बोला, जबकि अम्मा दिल थाम गई। जो वो बता रहा था, कह रहा था, वो मानना, ये मनवाना मुश्किल तरीन था। शामिर कभी नहीं मानेगा, उन्होंने कहा। इनकी हर शर्त मुझे मंज़ूर है। वो बोला, खा कर आए हो अचानक उभरती धार, खाना खाकर आए हो अचानक उभरती धार पर वक़्दम उठा और शामिर ने इसका गिरबान जकड़ा। इसकी मंगनी हो गई और शादी होने वाली है। सुना, आज तमीज़ से कह दिया, अगली बार तुम्हारी सूरत ना दिखे मुझे। वो चिल्लाया, जिस शख्स में आपकी बहन की मर्ज़ी नहीं, आप इसके साथ इसे जोड़ रहे हैं। फ़िज़ान हिम्मत करता बोला, जबकि एक मुक्का वो खा चुका था। अम्मा खामोशी रहीं। तुझे लिहाज़ हैरान हो तुझे है हैरान हुए हुए कि इसकी मर्ज़ी तुझ में तुझे इल्हाम हुआ है कि इसकी मर्ज़ी तुझ में है। शहरोज़ ने इसकी शर्ट पकड़ के दूसरा मुक्का जड़ दिया। शानज़ेब मुँह पे हाथ रखे इसे पिटता देख रही थी, जबकि फ़ैज़ान ने आँसू साफ़ किए। मैं इसे अपनी इज़्ज़त समझता हूँ और इसके भाइयों के सामने भी कुछ इसके बारे में ऐसा नहीं कहूँगा। मैं इसे चाहता हूँ। वो बोला तो दोनों इस पर टल पड़े, जबकि वो अपने बचाव को कुछ नहीं कर रहा था। लाला रुक जाए, खुदा का वास्ता आपको। अचानक शानज़ेब चिल्लाई। शामिर ने इसकी जानिब देखा। मेरी पसंद है। वो सिसकी। शानज़ेब उठाड़ा। रुक जाओ शामिर, अम्मा ने टोका। मैं अपनी बेटी को इस घर में नहीं ले आऊँगी। अगर तुम यहाँ मेरे सामने रहोगे तो मैं कुछ सोच सकती हूँ, अम्मा ने कहा। अम्मा, ये नामुमकिन है, शामिर ने कहा बेकाबू हुआ। अम्मा ने इसका हाथ थामा, मगर मैं घर जमाई नहीं बनना चाहता। इस तल्ले मैन में बड़ा दम है। छोड़ूंगा नहीं मैं इसे। शहरूज़ बन बनाया। वनीज़ा ने इसको रोका, तो फिर भूल जाओ मेरी बेटी को, अम्मा ने टका से जवाब दिया। जिस तरह आप अपनी औलाद को के लिए अहम है, इसी तरह मुझे भी मेरे माँ-बाप अहम है। इन्हें छोड़ नहीं सकता मैं, मगर शानज़े को अपनी जान से भी ज़्यादा चाहूँगा। वो उनके कदमों में बैठा। मेरी शर्त इतनी है, अम्मा ने कहा और शामिर का हाथ जकड़कर अंदर चल दी।